Afternoon class. I hope you all are safe at your homes, and I know that you all are excited to learn more maths. So let's do exercise 7E now. In this exercise you all have to do adding mixed fractions. We will learn how to add mixed fraction. Okay, so your ma'am will going to explain you the things. So adding mixed fraction may what we have to do, what are the things which are need to be taken care of. For example, if I am taking one question just like 2 is to 1 by 6 plus 3 by 4, you have to do this question. So what you will do in this question, first of all change this mixed fraction into improper. How we will change them? 6 multiplied by 2 plus 1 divided by 6 plus 3 by 4. What it will be? 6 2s are 12 plus 1 13 divided by 6 plus 3 by 4. Now what we have to take? We have to take the LCM of the denominator, that is 6 and 4, and you know the LCM is 12. If you don't know, so just do it in your rough part and then confirm that is it 12 or not. Now after this what you have to do is your LCM is 12. Now you have to divide this LCM with the denominator of the first fraction and then multiply the result with the numerator, plus divide this LCM with the denominator of second fraction and the result should get multiplied with the numerator. In numerator we have 3 now, that's right. 12 को 6 से if you divide you will get 2 multiply 13 plus 12 से if you are dividing 4 को divide करोगे आप, 4 से divide करोगे 12 को, you will get 3 into 3 upon 12. Now it will be 13 2s are 26 we have plus 3 3s are 9 divided by 12. So what it will be? It will be 35 by 12. Now this number is a improper number. We have to convert this into mixed fraction. So how I will convert it? 2 is to 11 by 12. I have divided the numbers and then I have converted it. Let me show you that कि मैंने कैसे divide किया. रफ पार्ट में डिवाइड करो. 12 2 सा 24, 12 3 से 36 होता है, तो वी कैन नॉट टेक दैट 36, यहाँ से 35 से ज़्यादा हो जाएगा, दैट्स वाई. नाउ जस्ट सब्ट्रैक्ट द नंबर्स, यू विल गेट 11. सो 11 विल बी रिटन एज द न्यूमरेटर, 2 विल बी रिटन एज योर what integral part. Is it clear? Let me do question number 1 का D part for you. तो question number 1 का D part is 2 is to 5 by 8 plus 1 is to 5 by 60. Both the numbers are in mixed. We have to convert it into improper. Let's convert. 8 2s are 16 plus 5 will be 21 by 8 plus 16 1s are 16 plus 5 will be 21 by 60. Now what you have to do is you have to find out the LCM of the denominators, that is 8 and 16, which is equals to 16 only. ठीक है? Now the LCM is 16. You have to divide LCM with this number. तो 16 को 8 से divide करोगे, what you will get? 2, and उस 2 को आपको multiply करना है with the numerator, plus 16 को 16 से divide करोगे, you will get 1, and you have to multiply it with the numerator. What all you will get? 21 into 2 will be 21 into 2 42 into 21 by 60. What will be your answer? 2 plus 1 is 3, 4 2 plus is 6. 63 by 16. And you know that 16 1s are 16, 16 2s are 32, 16 3s are 48, 16 4s are 64. तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आप क्या करोगे? 16 3s are 48. Now you have to subtract the number. ठीक है? 9 10 11 12 13. 13 में से 8 जाएगा, you will get 5, and 5 में से 4 गया, you will get 15. So this will be 3 is to 15 by 60. This will be your answer. Is it clear? Let me do one more question for all of you. Let me take question number 3 now. 3 का A part I am doing for you. It is 3 plus 3 by 4 plus 2 is to 5 by 8. ठीक है? Let's convert the mixed fraction into improper. What it will be? 8 to the 16 plus 5 will be 21 divided by 8. Beta, this 3 is also known as 3 by 1. Now you have to take the LCM of 1, 4 and 8, and which will become 8. 8 will be your LCM. 1 को 8 से डिवाइड करोगे 8 मिलेगा, 8 को आपको मल्टीप्लाई करना है विद द न्यूमरेटर जो कि 3 है. नाउ 8 को 4 से डिवाइड करो, यू विल गेट 2. 2 को मल्टीप्लाई करो विद द न्यूमरेटर, प्लस 8 को 8 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 1, तो मल्टीप्लाई करो उसको 21 से.
what will be your answer? 8 3s are 24 plus 3 2s are 6 plus 21 into 1 21 divided by 8. Now let's add the numbers. 6 plus 1 7, 7 plus 4 11 का 1 carry 51 by 8. अब ज़रा आप डिवाइड करो, ज़रा 8 को 51 से डिवाइड 51 को 8 से डिवाइड करो. 8 6 जा 48, 8 7 जा कितना होता है 56 ना, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 6 जा 48. सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट 3. तो व्हाट विल बी योर आंसर? 6:3/8. ठीक है बेटा, रिमाइंडर को हमेशा न्यूमरेटर में लिखते हैं और जो आपका डिनोमिनेटर है वो सेम रहता है. इज़ इट क्लियर? अब इसी टाइप के क्वेश्चंस आर देयर इन 7E. देखो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर ना 7E. ट्राई डूइंग देम. अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो उसको मार्क कर लो एंड देन आस्क मी इन द जूम मीटिंग. ओके, सो डू इट. नेक्स्ट टॉपिक विच आई हैव टू कवर इज सब्ट्रैक्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस. बेटा अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? देखो अनलाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं. या तो आप पहले उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो या फिर आप उसको डायरेक्टली एलसीएम लेके सॉल्व कर दो. तो वी विल टेक बोथ द मेथड्स. सबसे पहले मैम विल टेल यू कि कैसे यू इफ़ द क्वेश्चन इज चेंज टू लाइक फ्रैक्शंस एंड सब्ट्रैक्ट 3/8 फ्रॉम 5/12. ठीक है, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज दीज फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन. मैम ने आपको बताया होगा कि आपको कैसे लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है. बेटा फर्स्ट फ्रैक्शन आपने नोट किया, जो सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है आप उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो, राइट? और सेकंड फ्रैक्शन को आप फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हो. ठीक है, 12 3s are 36 और 12 8s are 96. इज इट क्लियर? ठीक है, इसके बाद 8 5s are 40 एंड 12 8s are 96. तो दोनों नंबर्स हो गए ना आपके सब्ट्रैक्शन में. तो अब लाइक फ्रैक्शंस में, तो अब आपको क्या करना है? 36/96 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 40/96 से. तो व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर? बेटा ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर द क्वेश्चन इज़ लाइक दिस कि सब्ट्रैक्ट 36/96 फ्रॉम 40/96, तो फ्रॉम के बाद वाली डिजिट को वी हैव टू राइट फर्स्ट. पहले हम फ्रॉम के बाद वाली डिजिट को मेंशन करते हैं, उसके बाद दूसरा डिजिट. अब तो ये बहुत सिंपल हो गया. आपका कॉमन डिनोमिनेटर क्या है? 96 एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स. सब्ट्रैक्ट करो, व्हाट यू विल गेट? 4/96. अब 4/96 इज़ नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो आप उसको कन्वर्ट करोगे. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 4s are 16. So what will be your answer? It will be 1/24. Is it clear? तो आपने इस तरीके से अनलाइक फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करके और सब्ट्रैक्ट कर दिया. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द सेम क्वेश्चन बट विद द अनदर मेथड. आपका क्वेश्चन क्या था? लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. आपका क्वेश्चन था कि सब्ट्रैक्ट 3/8 फ्रॉम 5/12. बेटा द मेथड इज़ डिफरेंट नाउ. आपको अब आप चेक करोगे कि आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आया है. मैंने आपको बोला था कि फ्रॉम के बाद वाली डिजिट को हम हमेशा पहले लिखते हैं, तो 5/12 माइनस 3/8. इसके लिए अब आप क्या करोगे? जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं ना, यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, दैट इज एलसीएम ऑफ 12 and 8 यू हैव टू फाइंड आउट. नाउ पॉज योर वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 12 and 8. आई होप यू ऑल हैव फाइंड इट आउट. लेट मी टेल यू कि कैसे फाइंड आउट किया मैंने. 12 और 8 का एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए मैंने बोला था हम हमेशा टुगेदर ले सकते हैं. So 2 is the smallest even prime number, तो we will divide the numbers with 2 because ये दोनों भी even है. 2 6s are 12, 2 4s are 8. Then we have 2 3s are 6, 2 2s are 4. उसके बाद फिर से हम 2 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको डिवाइड करना है. If 3 is not coming in 2, I will write 3 as it is. 2 1s are 2. Now 3 1s are 3 and this 1 will be as it is. जब भी आपका at the end 1 1 is there, then that means your thing is over. What you have to do is you have to multiply all the factors. What you will get? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. So what is the LCM of this thing? It is 24. अब मैंने आपको बताया है LCM you have to write here. LCM से डिनोमिनेटर को डिवाइड करो. 24 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 2. नाउ मल्टीप्लाई दिस 2 विद द न्यूमरेटर माइनस 24 को 8 से डिवाइड करो, you will get 3. Multiply this with the numerator, that is 3. What you will get? 5 2s are 10 minus 9 divided by 24. What will be your answer? 10 minus 9 is 1 divided by 24. So 1/24 is here also and 1/24 वहाँ भी था. तो
तो बोथ ऑफ द मेथड्स आर सेम, बस थोड़ा सा चेंजेस होता है। इसमें आपको एलसीएम प्रॉपर्ली फाइंड आउट करना है, उसमें भी आपको एलसीएम फाइंड आउट नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें बस आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वॉट एवर मेथड यू लाइक, जस्ट एक्सेप्ट दैट एंड स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस इन दैट मैनर। 7F के अंदर भी दीज टाइप के क्वेश्चंस आर देयर, तो यू ऑल कैन डू नाउ ऑल द 7F क्वेश्चंस। लेट मी शो यू विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन 7F। देखो बेटा 7F में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो ट्राई टू डू देम। एनी डाउट्स इफ़ यू आर हैविंग इन दीज क्वेश्चंस तो उसको मार्क करो एंड देन लेट मी नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू ऑल हैव। नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट वीडियो में आई विल सेंड यू दिस 7G सिंप्लीफिकेशन, ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल ट्राई। Okay, so start doing all these questions. Any doubts are there, mark them and then ask me later on. Okay, goodbye, take care and do maths, more and more maths. Okay, goodbye students.